کسی وجہ سے نہیں کہ ہم نے کیا اچھا کام کیا, کیا ٹھیک کام کیا, کیا امیزنگ کام کیا. ہماری ورتھ اس چیز سے آتی ہے کہ ہم اتنے قیمتی ہیں کہ خدا نے دنیا سے, ہم سے ایسی محبت رکھی کہ خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے دیا. کس کے لیے دیا؟ ہمارے لیے. اب ہم تھوڑا سا میڈیکل کے بارے میں باتیں کریں گے. آئی نو یہاں پہ زیادہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس تو نہیں ہیں, لیکن جو میں بات پوچھوں گی یہ آئی بلیو سب کو ہی پتا ہے. بلڈ, لہو کے بارے میں یہ چھوٹا میسج آج پاکشا کے حوالے سے ہے, تو پلیز آپ لوگ دھیان سے خداوند کے کلام کو سنے ہوئے. میرے لیے نہیں, اس لیے کہ خداوند آپ کو کچھ نیا شاید سکھائے. خداوند آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. خداوند کے کلام کو آنر کرتے ہوئے خداوند کے کلام کو سنیے. ہم لہو کے بارے میں بات کریں گے. ہمارے جو انسانی بلڈ ہے, میڈیکلی اسپیکنگ, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی بلڈ آف کرائسٹ. میں ابھی یسوع کا لہو جو ہمارے اندر ہے اس کے بارے میں بات نہیں کر رہی. جو عام بلڈ ہے اس کے بارے میں کوئی ہے کچھ بتانا چاہ سکے؟ وائی از بلڈ سو امپورٹنٹ؟ بلڈ اتنا خاص کیوں ہے؟ اگر بلڈ نکل جائے تو انسان مر جاتا ہے. بلڈ نکل جائے تو انسان مر جاتا ہے. اینی ون؟ لہو میں زندگی ہے, سیم چیز. اور کوئی بتائیے بلڈ کے بارے میں. بلڈ کیا کرتا ہے؟ باڈی کے لیے بہت ضروری ہے. ہمارے جو بھی ویسٹ پروڈکٹس وغیرہ, جو ہماری چیز باڈی میں جو چیز نہیں صحیح ہوتی, بلڈ کو پتہ ہے کیسے ریپیئر کرتے ہیں, ریسٹور کرتے ہیں, اس کو فکس کرتے ہیں. سو میرا واٹ اباؤٹ یو, بلڈ کے بارے میں کچھ بتائیے. آرگنس کو آکسیجن دیتا ہے. اینی سب کو یہ تو پتا ہے کہ بلڈ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. بلڈ بہ جائے تو بس انسان از ڈیڈ. بلڈ از دیٹ امپورٹنٹ. بلڈ اتنا خاص ہے. بلڈ ہمارے باڈی کے ٹیمپریچر کو نارمل رکھتا ہے. ایسا ہی ہے بہت ساری چیزیں. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو جو عام بلڈ ہے اس کے بغیر لائف ہے ہی نہیں. بلڈ نکل جائے تو انسان از ڈیڈ. آج ہم بات کریں گے وائی از بلڈ سو امپورٹنٹ. ہم اب ببلیکل پرسپیکٹو سے بات کریں گے. پہلے ہم میڈیکلی بات کر رہے تھے ہیومن باڈی کے لحاظ سے کہ لہو کیوں امپورٹنٹ ہے, بلڈ کیوں امپورٹنٹ ہے, بائبل میں بلڈ کیوں امپورٹنٹ ہے. اس کی پہلی ایگزامپل کے لیے نا ہمیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں. ہم پیدائش کی کتاب سے شروع کرتے ہیں. لیٹس ریڈ اٹ. پیدائش کی کتاب سے شروع کرتے ہیں. قائن اور ہابیل کی سٹوری کس کس کو پتا ہے؟ بچپن میں سنی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے, لیٹس ریڈ اباؤٹ دیٹ سٹوری. پیدائش کی کتاب اس کا 4واں باب 3 سے 5 آیت. چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خدا ان کے پاس لایا, اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا. اور خداوند نے حابل کو اور اس کے ہدیے کو منظور کیا, پر قائن کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا, اس لیے کہ قائن نہایت غضبناک ہوا. اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا. اب بہت ساری باتیں ہیں, لیکن ایک چیز ہے, کیوں خدا کو قائن کی جو سیکریفائس ہے وہ اتنی پسند نہیں آئی جتنی حابل کی پسند آئی؟ کوئی آئیڈیا؟ بلڈ. ایبل, حابل جو تھا اس کی سیکریفائس کنٹین بلڈ. حابل کی جو قربانی تھی اس میں خون شامل تھا, اور خداوند نے حابل کی قربانی کو قبول کیا بیکاز اٹ کنٹین بلڈ, کیونکہ اس میں بلڈ شامل تھا. اب آئیڈیا ہو گیا اسٹارٹ میں ہی بلڈ کی کیا امپورٹنس ہے. پیدائش کی کتاب میں خداوند نے بتا دیا کہ بلڈ کتنا امپورٹنٹ ہے اسپرچولی. لیٹس ریڈ اباؤٹ اٹ ان دی نیو ٹیسٹمنٹ. ہم نیو ٹیسٹمنٹ میں اس کے بارے میں تھوڑا پڑھیں گے. اعمال کی کتاب 20:28. بس اپنی اور اس سارے گلے کی خبرداری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا ہے, تاکہ خدا کی کلیسیا کی گلہبانی کرو جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا. کلیسیا کس کی ہے؟ کسی انسان کی ہے؟ ادھر کیا لکھا ہوا ہے آیت میں؟ لیٹس ریڈ اٹ اگین. اوپن
बस अपनी और सारी गले की खबरदारी करो जिसका रूल कुदस ने तुम्हें निगहबान ठहराया। रूल कुदस ने पास्टर्स को खुदा की कलीसिया का निगहबान ठहराया। यू गेट इट? कलीसिया किसकी है? खुदा की। पास्टर को निगहबान किसने ठहराया है? रूल कुदस ने। और कलीसिया को कैसे खरीदा गया? लहू से, द ब्लड ऑफ जीसस। कलीसिया को किस चीज से खरीदा गया है? किस चीज से मोल लिया गया है? क्या लिखा है? लहू से। खास अपने खून से मोल लिया। हम लोग ह्यूमन बींग्स जो है, वी प्लेस अ हाई वैल्यू, हम उस चीज पे बहुत वैल्यू प्लेस करते हैं जो महंगी हो। महंगा फोन हो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होता है कि ये तो इतना महंगा है। महंगी गाड़ी हो, जितनी महंगी हो उतनी उसको आपको लगता है उसकी वैल्यू है। ऐसा ही है, हम लोग कैसे डिटरमिन करते हैं, कैसे अंदाजा लगाते हैं कि कौन सी चीज कितनी खास है? उसकी वैल्यू से, कि उसको लेने के लिए आपके कितने पैसे खर्च हुए हैं। हाउ मच डिड यू हैव टू पे फॉर इट? आप किस चीज से खरीदे गए हैं? यीशु के लहू से। हालेलुया। आपकी वैल्यू आपकी पोजीशन से नहीं आती। आपके पास अच्छी पोजीशन है, जॉब पे है, आपकी अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है, आपकी वैल्यू उससे नहीं आती। आपने पास्ट में जो गलतियां की उनकी वजह से आपकी वैल्यू कम नहीं होती। आपकी प्रेजेंट में जो आपको सक्सेसेस मिली, आपकी वैल्यू वहां से नहीं आती। आपकी वैल्यू किस चीज से आती है? कि आपको कैसे मोल लिया गया है। आपको कैसे मोल लिया गया, ये डिटरमिन करता है आपकी वैल्यू को। आपकी वैल्यू किससे आती है? ये जानने से कि आपके लिए यीशु का खून बहाया गया। यीशु का खून सबसे कीमती सब्सटेंस इन द होल वाइड वर्ल्ड, यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में इससे महंगी कोई चीज है ही नहीं। आप 1.5-2 लाख का, 3 लाख का आईफोन ले ले तो आपको होता है कि इस चीज की वैल्यू है, ये एक्सपेंसिव है, बिकॉज हाउ मच यू पेड फॉर इट, बिकॉज उसमें कितने पैसे आपके लगे। हम वैल्यू डिटरमिन इसी तरह करते हैं ना किसी चीज की, कि उसको खरीदने के लिए, उसको लेने के लिए कितना लगा। आपकी वैल्यू किससे आनी चाहिए? यीशु के लहू से। ये जानने के लिए कि यीशु ने आपके लिए लहू बहाया। अब चाहे आप कहीं पे झाड़ू फेरते हैं, चाहे आप बड़े स्कॉलर हैं, चाहे आप बड़े इंजीनियर हैं, चाहे आप आम इंसान हैं जो अभी जॉब ढूंढ रहे हैं, चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपकी वैल्यू आपकी पोजीशन से, आपके पोजेशन से, कि आपके पास क्या क्या है, आपकी अचीवमेंट से, कि आपको कितनी डिग्री से, मुझसे नहीं आती। और पैसे से तो बिल्कुल भी नहीं आती। वो आज है, कल शायद नहीं होगा, फिर शायद परसों आ जाए, फिर अगले दिन ना हो। पैसे से तो आपकी बिल्कुल वैल्यू नहीं आती। अगर हम अपनी वैल्यू बेस करें दूसरी चीजों पे, तो हम कभी एहसास कमतरी में चले जाते हैं, कभी एहसास बर्तरी में चले जाते हैं। बट नोइंग दैट यू परचेज्ड विद द ब्लड ऑफ जीसस, ये जानना कि आप यीशु के लहू से खरीदे गए हैं, विल ऑलवेज मेक यू फील वैल्यूएबल। आपको हमेशा ये एहसास होगा मैं वैल्यूएबल हूँ। ठीक है, मुझसे कोई गलतियां हुई, लेकिन वो मैं नहीं हूँ, वो यीशु ने अपने लहू से मुझे माफ कर दिया है। मैं वैल्यूएबल हूँ। वैल्यूएबल के लिए परफेक्ट लफ्ज उर्दू में क्या होगा? मेरी बहुत कदर है। कदर, बड़ी अहमियत है, कदर और अहमियत है। हालेलुया। लेट्स गो, हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इफ्सियों की किताब की तरफ चलेंगे। इफ्सियों 2 बाब उसकी 13वीं आयत, मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए। दूर से क्या मुराद है इधर? वो लोग जो शन किए जाते थे, जो जिनको कुछ नहीं समझा जाता था। हम भी जेंटाइल्स ही हैं, हम कोई ब्लड से यहूदी तो नहीं है ना, हम भी वो लोग हैं आउटकास्टेड, गैर अक़वाम, हम भी जेंटाइल्स हैं, गैर कौमी हैं हम। लेकिन हम कैसे नजदीक आते हैं? यीशु के लहू से। अब हम क्या है? यीशु के लहू के बाद अब कोई, अभी भी हम वही है जो दूर थे, जिनसे लोग दूर थे, हम कुछ नहीं थे। अब हम क्या है? शाही कायम का फिरका और मुकद्दस कौम। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो। जब भी आपको कभी लगे आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो कि समटाइम्स ह्यूमन बीइंग होते हुए हम सब स्ट्रगल करते हैं, आपके साथ स्पेशली कोई आपके साथ जब बुरा करे ना,
تو آپ کو یہی لگتا ہے شاید آئی ایم ناٹ گڈ انف, شاید میں کوئی اتنا اچھا نہیں, آئی ڈیزرو اٹ, شاید میں ضرور اسی قابل تھا, یا آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا, آپ نے آپ کے بارے میں سوچنا شروع ہو جاتے ہیں میں برا انسان ہوں, مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. ہم فوراً بھول جاتے ہیں اپنی ویلیو کو, غلطی ہوئی فوراً معافی مانگے اینڈ کنفیس کریں خدا مجھ سے غلطی ہوئی, میں اپنے غلطی کا گناہ کا اقرار کرتی ہوں اور یہ جانتی ہوں کہ آپ نے میرے لیے جان بہائی, آپ نے میرے لیے اپنا خون بہایا, اور خداوند میں جانتی ہوں کہ میں ویلیویبل ہوں, میں قیمتی ہوں, میں میری پاسٹ مسٹیکس نہیں ہوں, میں میرے پریزنٹ کے سکسیسز نہیں ہوں, میں ویلیویبل ہوں بیکاز آف واٹ یو ہیو ڈن آن دی کراس, میں قیمتی ہوں یسوع کے لہو کے وسیلہ سے. سب اپنی طرف فنگر کریں, ایوری ون پلیز پوائنٹ ٹو یور سیلف, سے آئی ایم ویلیویبل, میں قیمتی ہوں, میں بیش قیمت ہوں, میں خاص ہوں. اب یہ یاد رکھیں گے جب دن برا گزر رہا ہوگا, ریمائنڈ یور سیلف, جب برا دن آئی مین کہ اپس اینڈ ڈاؤنس لائف میں آتے ہیں, بجائے کہ ڈپریس ہو کے بیٹھ جائیں, آپ اپنے یاد کرایا کریں آئی ایم ویلیویبل, اپنے آپ کو یاد کرایا کریں. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے, رائٹ؟ سب سے زیادہ انسان کس کو سنتا ہے؟ اپنے تھاٹس کو, اپنے آپ کو بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کرائے آئی ایم ویلیویبل, میں قیمتی ہوں. اب احبار کی کتاب پہ ہم چلیں گے 17 باب 11. جی حامد, کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے, اور میں نے مذبے پر تمہاری جانوں کے کفارے کے لیے اسے تم کو دیا ہے کہ اس سے تمہاری جانوں کے کا کفارہ ہو جائے, کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کا کفارہ دیتا ہے. پہلی بات ہم نے کیا سیکھی کہ جو لہو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. دوسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ ہم ویلیوبل ہیں, ہماری جو ورتھ ہے وہ یسوع کے لہو سے آتی ہے. اب ہم بات اس بارے میں سیکھ رہے ہیں کہ لہو میں زندگی ہے. There is life in the blood. دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ تو ڈیڈ چیز ہے, یہ تو بلڈ ہے, یہ تو ڈیڈ ہے, مردہ چیز ہے, لیکن کلام مقدس کے مطابق لہو میں زندگی ہے. دوبارہ پڑھیے پلیز یہ والی احبار والی. احبار 17 باب اس کی 11ویں آیت, کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے, اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارے کے لیے اسے تم کو دیا ہے کہ اس سے تمہاری جانوں کے کا کفارہ ہو, کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے. جان رکھنے کے ہی سبب سے لہو میں جان ہے. ورس 11, اس چیپٹر کی جو ورس 11 جو آپ نے پڑھی ہے, یہ ون آف دا موسٹ اسٹیگرنگ ورس ان دا بائبل, کہ بائبل کی ایک عظیم ترین اسٹانشنگ سرپرائزنگ آیتوں میں سے ایک ہے کہ لہو میں زندگی ہے. اور خداوند کہتے ہیں کہ اس لہو کو اتنا مطلب رسپیکٹ سے ہم کریں کہ اگر کوئی ہنٹنگ کے لیے بھی جاتا ہے, کوئی شکار کے لیے بھی جاتا ہے, تو یو کین انجوائے دا میٹ, آپ گوشت کو انجوائے کر سکتے ہیں شکار میں, بٹ یو ڈونٹ ہیو دا رائٹ ٹو دا لائف آف دی اینیمل. لیکن آپ کا اس جانور کو یا پرندے کا جس کا آپ نے شکار کیا ہے, آپ کا اس کی زندگی پہ اختیار نہیں. یو ڈونٹ ہیو دا رائٹ ٹو دا لائف آف دی اینیمل. لائف کس میں ہے؟ بلڈ میں. تو دیکھتے ہیں شکار کے بارے میں خداوند کیا کہتے ہیں. میں آپ کو بلڈ کی امپورٹنس بتا رہی ہوں. احبار 17 باب 70. جی پلیز. ہاں جی 13ویں 14ویں آیت. اور بنی اسرائیل میں سے یا ان پردیسیوں میں سے جو ان میں بدواش کرتے ہیں, جو کوئی شکار میں ایسے جانور یا پرندے کو پکڑے جس کو کھانا ٹھیک ہے, تو وہ اس کے خون کو نکال کر اسے ڈھانپ دے, کیونکہ جسم کی جان جو ہے وہ اس کا خون ہے, اور جو اس کی جان کے ساتھ ایک ہے. اس لیے میں نے بنی اسرائیل کو حکم کیا ہے کہ تم کسی قسم کے جانور کا خون نہ کھانا, کیونکہ ہر جانور کی جان اس کے خون ہی میں ہے. جو کوئی اسے کھائے وہ کاٹ ڈالا جائے گا. اب یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ جب آپ شکار کے لیے جاتے ہیں, بنی اسرائیلی فقائے یا ان کے جو آسان لوگ رہتے ہیں, ہم لوگ بھی, اب اگر جب بیسکلی خداوند یہ کانسیپٹ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ شکار کے لیے بھی جاتے ہیں نا, آپ بلڈ کو ڈرین کریں اور اسے مٹی سے ڈھانپ دیں. بیری دیٹ بلڈ, لائف بلڈ میں ہے, ٹھیک ہے. یو کین انجوائے دا میٹ, آپ اس کا گوشت انجوائے کریں, لیکن اس کی زندگی کا اختیار
नहीं है. You don't have the right to the life of the creature. उसको बेरी करें, मिट्टी से ढांक दें. This is how important blood is. इतना खास है blood, इतनी अहमियत रखता है blood कि इवन शिकार के टाइम भी खुदावंद कह रहे हैं कि मिट्टी से ढांक दें उस blood को. Why? Because this is the life of the animal. ये जिंदगी है, blood जिंदगी है. अब ब्लड में जिंदगी है, ब्लड की वजह से हम वैल्यूएबल है, ब्लड की वजह से हम जिंदा हैं. अब ब्लड एक और चीज है जो बाइबल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका. इट्स अ मेथड ऑफ पेमेंट. हम लोग कैसे बाहर जाते हैं, कैसे खरीदते हैं चीज? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कैश. यू पे अ प्राइस. आप लोग कोई ना कोई प्राइस पे करते हैं. ब्लड की जो ब्लड था खुदावंद की तरफ से ये उसके लिए था रूल कि ये दैट कुड ओनली बी यूज्ड एज अ मेथड ऑफ पेमेंट. ये सिर्फ एक पेमेंट के लिए ही यूज हो सकता है. पेमेंट किसी आम चीज के लिए, कुफारे के लिए, गुनाहों से छुटकारे के लिए, गुनाहों को ढांपने के लिए, गुनाहों के लिए ये यूज होता था. बकरे बछड़ों का खून, इसी से सैक्रिफाइस होती थी ना. लेकिन यीशु का शुक्र है हमें नहीं ये करना पड़ता, क्योंकि जॉन द बैप्टिस्ट ने याद है क्या कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहां के गुनाह उठा ले जाता है. हालेलुया. हम लोग को सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं. लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ब्लड का पर्पस, एक पर्पस क्या था कि इट वाज अ मेथड ऑफ पेमेंट फॉर सिंस. गुनाहों की मुआफी की कीमत वो थी. आप बाहर जाते हैं, आप कीमत देते हैं. गुनाहों की माफी की कीमत उस टाइम क्या होती थी? खून. इस टाइम क्या कीमत है? इस टाइम भी खून है, लेकिन हमें नहीं बहाना पड़ता. यीशु ने once and for all जब कहा it is finished, हमारे लिए अपना खून बहा दिया. हालेलुया. टाइम एंड अगेन बार-बार खुदावंद ने ओल्ड टेस्टामेंट से, मैंने तो थोड़े से स्क्रिप्चर्स यूज किए हैं, ओल्ड टेस्टामेंट से न्यू टेस्टामेंट तक खुदावंद ने बार-बार लहू की अहमियत बताई है. अब जब नई कलीसिया कायम हुई, हम ईमान की किताब के 15 बाब से पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा आपको बता दूं. जब यीशु आसमान पे चले गए, उनके शागिर्द लोगों को खुदावंद के बारे में बताना शुरू हो गए, तो कुछ लोग थोड़े कंफ्यूज्ड हो गए कि क्या हमें सारा जो अहबार की किताब में और असिस्ता की किताब में सारे लॉज हैं, हमें वही पूरे करने हैं. फिर क्वेश्चन आया यरूशलेम में कि जाके शागिर्दों से पूछते हैं. फिर यीशु के जो हाफ ब्रदर हैं, जेकब, उर्दू में क्या है, याकूब, उन्होंने कहा कि भाई ये चीजें हैं जो जेंटाइल्स हैं, जो ज्यूज नहीं है, जो गैर कौमें हैं, जब वो खुदावंद को कबूल करते हैं तो बस ये चीजें कर लें. उनसे नहीं रिक्वायर्ड कि वो पूरे लॉ को फुलफिल करें, सर्कमसिजन करें, खतना करवाएं. तो उनमें भी खुदावंद ने क्या, याकूब के जरिए क्या इंपॉर्टेंस बताई? ब्लड इज स्टिल देयर, कि ब्लड नहीं खाना. लेट्स रीड अबाउट दिस. ईमान की किताब 15 बाब 19 से 20 में आए. बस मेरा फैसला ये है कि जो गैर कौमों में से खुदा की तरफ रुजू होते हैं, हम उनको तकलीफ ना दें, मगर उनको लिख भेजें कि बुतों की मकरूहात और हरामकारी और गला घूटे हुए जानवरों और लहू से परहेज करें. और किससे परहेज करें? लहू से. लहू से. You can't eat the blood. You can't drink the blood. आप लहू नहीं पी सकते, लहू नहीं खा सकते. आप कहेंगे ये को बताने वाली बात है, कौन खाता है? लोग खाते हैं. इंग्लैंड में बहुत फेमस, आप YouTube करें, मैं आपको चले फनी थोड़ा क्यूरियोसिटी आपकी बढ़ाती हूँ. यूके में एक डिश है ब्लड पुडिंग. वो ड्राइड ब्लड से बनती है. ब्लड को ड्राई करके उसे खाया जाता है. और आपको पता है जिस चीज से खुदावंद मना करे शैतान वही जरूर काम कराता है. ड्रैकुला का नाम किस किस ने सुना हुआ है? ड्रैकुला का मतलब क्या है? सन ऑफ द डेविल. और सन ऑफ द डेविल क्या करता है? ड्रैकुला खून पीता है. खून पीने से उसमें लाइफ आती है. ये वैम्पायर्स, हॉलीवुड को शैतान हॉलीवुड के जरिए, अब जो आपके बच्चे मूवियां देख रहे हैं, दिस इज व्हाई यू नीड टू कीप एन आई ऑन व्हाट योर किड्स आर वाचिंग. इसलिए आपको जरूरत है कि आप देखिए कि आपके बच्चे क्या देख रहे हैं. कुछ शैतान ने तो वही करना है जो ऑपोजिट है खुदा के कलाम के. इधर खुदावंद कहते हैं ब्लड नहीं खाना, ब्लड नहीं पीना, ब्लड में लाइफ है. उधर टीवी पे बच्चों को ड्रैकुला
से उसमें एनर्जी आती है, जान आती है। वैम्पायर्स ब्लड पी के जिंदगी लेते हैं, और यीशु ने हमें जिंदगी कैसे दी? अपना खून बहा के। हालेलुया। अब ब्लड में जिंदगी है, उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल, फेमस एग्जाम्पल, थोड़ा मैं हिंट देती हूँ। ये इस्राएली जब मिस्र में थे तब की स्टोरी है। कौन बताएगा? जी प्लीज बताइए। यस, ब्लड को अपनी चौखटों पे लगाना है। ब्लड हैज लाइफ, ब्लड में जिंदगी है। और आया कौन था? डिस्ट्रॉयर, द एंजल ऑफ डेथ। डेथ का एंजल आया, क्यों पैस ओवर हुआ? बिकॉज लाइफ, ब्लड रिप्रेजेंटेड लाइफ। ब्लड क्या रिप्रेजेंट करता है? जिंदगी को। क्या वो लोग मारे गए जिन्होंने चौखटों पे खून लगाया था? बिल्कुल भी नहीं। हालेलुया। अब हम, क्या शैतान हमें टच कर सकता है? Why? यस, सब बोले पीछे वाले, क्या आप लोगों को आवाज नहीं आ रही? आप भी बताइए, शैतान हमें क्यों नहीं टच कर सकता? क्योंकि हम यीशु के लहू से धुले हैं। हालेलुया। यूहन्ना की किताब से पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब 6 बाब 53 से 56। You have it there? यूहन्ना की इंजील उसका 6वां बाब उसकी 53 से 56 का। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, मैं जिंदगी, उसमें जिंदगी नहीं है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। क्योंकि मेरा गोश्त फिर हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिर हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। हालेलुया। हालेलुया। अब हमारे लिए अभी इधर आयत सुन के हालेलुया कहना थोड़ा ज्यादा इजी है, बट उस टाइम जो यहूदी हैं उनके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग था। हमने तो पढ़ा है यही अपनी किताब में कि ब्लड नहीं खाना, ब्लड नहीं पीना। ये कौन सा मसीहा, ये कौन सा है जो आके कह रहा है मेरा गोश्त खाओ, मेरा खून पियो? समझ रहे? तो बेसिकली इस जीसस इस टाइम फ्लैश में, क्या वो ये कह रहे हैं कि मेरा ब्लड निकाल के पीना शुरू कर दो? ही इज टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल थिंग। वो एक स्पिरिचुअल चीज के बारे में बात करें कि मेरे लहू में जिंदगी है। जब तक तुम मेरी जिंदगी को अपने अंदर नहीं लेंगे, यू वोंट हैव लाइफ, तब तक आप में जिंदगी नहीं आएगी। बेसिकली जीसस कह रहे थे कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। यीशु लिटरली अपने ब्लड का नहीं थे कह रहे, जो उस टाइम यहूदियों को थोड़ा अंडरस्टैंड करने में मुश्किल हुई, बिकॉज उन्होंने तो यही सुना था कि ब्लड नहीं पीना। वो तो फौरन ऑफेंडेड हो गए, नाराज हो गए कि ये क्या है, हमने सीखा है कि ब्लड नहीं पीना, ये कह रहा है मेरा जो है ब्लड वो पीने की चीज है। लेकिन उन्होंने मेन चीज को मिस कर दिया कि लाइफ ब्लड में है। यीशु कह रहा है कि मेरी जिंदगी को अपने अंदर ले, मुझे एक्सेप्ट करे, मैं जिंदगी हूँ। हालेलुया। आप कुछ नसीब है बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड, आपको समझ आ गई है कि यीशु की वजह से जिंदगी, और जब आप यीशु को एक्सेप्ट करते हैं, यू हैव इटर्नल लाइफ, आपके पास हमेशा की जिंदगी है। हालेलुया। अब आखिरी बात, हमने क्या क्या बातें सीखी? लेट्स रिपीट इट। ब्लड इज अ मेथड ऑफ पेमेंट। ब्लड एक पेमेंट गुनाहों के लिए एक पेमेंट है, कीमत है। ब्लड में जिंदगी है, और क्या है? ब्लड की वजह से आप वैल्यूएबल है। अब हम लास्ट चीज के बारे में बात करेंगे। सुबैरा ने मीटिंग लीड करते हुए भी उसके बारे में बात की। कौन कौन सुन रहा था? ब्लड के बारे में सुबैरा ने बहुत फेमस आयत और पावरफुल आयत बोली थी। क्या, लेकिन स्पेसिफिकली वो क्या था? द ब्लड स्पीक्स। कौन कौन सुन रहा था? सुबैरा ने जब बोला था द ब्लड स्पीक्स, ब्लड बोलता है। अगर ब्लड जिंदा है, अगर ब्लड में जिंदगी है, तो उसको बोलना भी चाहिए ना। चलिए इसके लिए हवाला पढ़ते हैं हम पैदाइश की किताब। हम दोबारा कायन और हाबिल की स्टोरी की तरफ आएंगे। पैदाइश की किताब 4 बाब 10 आयत। फिर उसने कहा, तुम्हें क्या किया?
तेरे भाई का खून जमीन से मुझको पुकारता है। तेरे भाई का खून जमीन से मुझे पुकारता है। ब्लड स्पीक्स, ब्लड बोलता है। अब आगे हम चलेंगे मुकाशवा की किताब, इसी बारे में ब्लड स्पीक्स के बारे में बात करते हुए मुकाशवा की किताब 6:10 है। और वो बड़ी आवाज से चिल्लाकर बोली कि ऐ मालिक, ऐ कुद्दूस व बरहक, तू कब तक इंसाफ ना करेगा और जमीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा। हाबिल का ब्लड क्या बोल रहा था? ब्लड अगर बोलता है और वो कह रहे तेरे भाई का खून बोल रहा है, तो वो यही बोलता होगा ना, बदला, इंसाफ, वेंजेंस। इधर मुकाशवा की किताब में ये वो लोग हैं जो ट्रिब्यूलेशन में मारे गए, जो मुसीबतों, बड़ी मुसीबतों में मारे गए, और वो कह रहे खुदावन कब हमारे खून का हिसाब लेंगे आप, कब हमारे खून का भी बोल, अपने खून का उनको इंसाफ चाहिए। हाबिल का खून भी बोल रहा था, इधर ये लोग कह रहे हैं हमारे खून का इंसाफ कब होगा। लोग खून की चाहते हैं कि उनकी वेंजेंस को बदला लिया जाए, लेकिन यीशु का खून क्या बोलता है? आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। इब्रानियों की किताब 12:24 आए। इब्रानियों 12:24 आए। और नए अहद के दरमियानी यीशु और छिड़काव के उस खून के पास आए हो जो हाबिल के खून की निस्बत बेहतर बातें कहता है। हाबिल हाबिल के खून से बेहतर बातें करता है। हाबिल का खून क्या बोलता था? बदला, इंसाफ। यीशु का खून क्या बोलता है? मर्सी, फॉरगिवनेस, रहम, माफी। ये ब्लड आपके लिए है। अगर आप अभी भी गुनाह में हैं तो ये खुदावंद का कसूर नहीं। आप लोग गलतियां करते हैं, मैसअप करते हैं और खुदावंद से नाराज हो जाते हैं। खुदावंद का लहू तो अभी भी बोल रहा है, फॉरगिवनेस, माफी, रहम। खुदावंद कहर करने में धीमा है, शफकत में गनी है। खुदावंद आपको भी माफ करना चाहते हैं। If there is still sin in your life, अगर अभी भी आपकी लाइफ में गुनाह है, the blood of Jesus can cleanse you. खुदावंद का लहू जो जिंदगी रखता है, जो आपकी गुनाह की एक पेमेंट है, जो लाइफ रखता है, वो अभी भी आपको जिंदगी दे सकता है, आपको गुनाहों से रिहाई दे सकता है। हम एक आखिरी आयत पढ़ेंगे, इब्रानियों 9:22 आयत। इब्रानियों 9 उसकी 22 आयत। और तकरीबन सब चीजें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं और बगैर खून बहाए मुआफी नहीं होती। There is no forgiveness of sins without the blood. बगैर खून बहाए माफी नहीं है। ओल्ड टेस्टमेंट में जानवरों का खून, न्यू टेस्टमेंट में यीशु का खून। और अगर आप यीशु के खून को एक्सेप्ट नहीं करते तो क्या आप अपना खून देंगे? आपका खून परफेक्ट है? बगैर खून बहाए माफी नहीं। आपको तो खून बहाने की जरूरत भी नहीं। यीशु का खून आपके लिए बहाया गया। Everyone please stand to your feet. प्लीज सब खड़े हो जाएं। हम लोग मसीही जो है एवरी अदर संडे हम बादशाह लेने के आती हैं। समटाइम्स हम आराम से प्याले को रिजेक्ट कर देते हैं, आई एम नॉट गुड इनफ। इज इट अ टाइम टू मेक अ चेंज? बजाय कि हम प्याले को रिजेक्ट करें, आप अपने आप को चेंज करें। खुदावंद से कहें, खुदावंद लहू जो इतना पावरफुल है, जो इतना कीमती है, जो मेरे लिए बहाया गया, खुदावंद मैं उस लहू को रिसीव करता हूँ, करती हूँ। खुदावंद forgive me of my past, forgive me of my sins। खुदावंद मुझे मेरे गुनाहों से माफ करे ताकि मैं पाकीज़गी में पाकशाह में शरीक हो सकूं। तो तू कैन सी गॉड के वॉश ऑफ माय सिंस। हम अभी गीत गाएंगे और उस गीत के दौरान प्लीज चेक योरसेल्व्स। हम गीत गाएंगे, दिल के दाग को धोएंगे और उस गीत के दौरान आई वांट टू क्लोज योर आईज। प्लीज अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने आप को पाकशाह के लिए तैयार